Hello children, how are you all? I hope you all are doing well, watching the videos and completing your work. So children, if you are watching the video, you must be aware that in the previous video we were doing chapter 6, that is input and output devices. So children, as you know, in the previous video we had discussed the topic that is input and output devices. So here children, when we were discussing about these input and output, first thing which we should know is that what is input? Input is a set of instructions given to the computer to perform any task. So children, as we know, computer is a man-made device and it is made by man, as well as it works only we give instructions to the computer. So children, before doing any work, we need to give set of instructions. Using these instructions, computer performs a task. So this set of instruction, these set of instructions are called input. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ instructions देने होते हैं या raw material या data देना होता है. Unless or until you provide instructions, data or raw material children, computer will never be able to perform any task. तो कोई भी काम करने से पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं जिनको यूज़ करके कंप्यूटर किसी काम को परफॉर्म करता है. सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट. सो यहाँ पे चिल्ड्रन वी हैड स्टडीड एंड अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ इनपुट, दैट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द सेट ऑफ instructions given to the computer, given to the computer is called input. Now children, in order to give some instructions to the computer, we need some devices. अब हमें instructions अगर कंप्यूटर को देना है तो उसके लिए we need some devices. What are these devices children? The devices used to give instruction is called input device. क्योंकि हम input कर रहे हैं ना, हम instructions दे रहे हैं, तो इस instructions को देने के लिए in the form of input we need some devices. And क्योंकि हम input दे रहे हैं devices के through, so these are known as input devices. So devices used to give input is called input devices. So children, we need to give input to the computer in order to perform any task, and for giving these input to the computer we need some devices. इनपुट देने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है एंड दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. हम इसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. तो हियर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट with the help of certain devices or certain part of computer is called input devices. मतलब कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स को यूज़ करके जो हम इनपुट कंप्यूटर में डालते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई काम करने को, उसे हम इनपुट कहते हैं. एंड इस इनपुट को कंप्यूटर में देने के लिए वी नीड सम डिवाइसेस. दोज डिवाइसेस आर नोन एज इनपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव अंडरस्टूड two words. One is input and the other word is input device. So before doing any task on the computer, we need to provide instructions in the form of data or raw material. These instructions are given with the help of different parts of computer, and these parts of computer are called input devices. The devices which are used to give instructions to the computer are called input device. क्योंकि हम instructions को input कर रहे हैं using these devices, that is why it is known as input device. इसलिए हम इसको input device कहते हैं. Now children, what are these input devices? अब ये input devices होते क्या हैं? Children, मैंने बोला parts of computer. These are different parts of computer. So we have already studied about these parts, but we are going to divide the different parts of computer
इन टू टॉपिक, वन इज इनपुट एंड द अदर इज आउटपुट. सो एक तो हमारे पास इनपुट है और दूसरे आउटपुट है. तो यहाँ पे जब इनपुट और आउटपुट को हम इन पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज सम आर यूज्ड एज अ इनपुट डिवाइस एंड सम आर यूज्ड एज अ आउटपुट डिवाइस. सो चिल्ड्रन, हियर वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच आर ऑलवेज नीडेड. कुछ तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, जो एज पर द नीड और व्हेन रिक्वायर्ड वी यूज इट. फॉर एग्जाम्पल आपका प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के बिना भी कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन हमें प्रिंट आउट निकालना है तो उस समय हम प्रिंटर को यूज़ करते हैं. तो ये वी हैव अंडरस्टूड बोथ द टर्म्स, वन इज इनपुट एंड द आउटपुट एंड द इनपुट डिवाइस एंड देन द सेकेंड टर्म इज चिल्ड्रन, सेकेंड टर्म हमारे पास है आउटपुट एंड आउटपुट डिवाइस. अब व्हाट इज आउटपुट चिल्ड्रन? एज यू नो चिल्ड्रन, आफ्टर द input is given to the computer, it performs a work. When it performs a work children, for everything we have a result. अब यहाँ पे कोई काम होगा तो उसका रिजल्ट भी होगा, उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं, द फाइनल रिजल्ट. तो यहाँ पे फाइनल, FINAL, फाइनल रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. ये जो फाइनल रिजल्ट है इसको हम आउटपुट कहते हैं. नाउ फॉर गिविंग द फाइनल रिजल्ट ऑल्सो वी नीड सर्टेन डिवाइसेज एंड दीज आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेज, जिसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. अब हमें जब फाइनल रिजल्ट देना है या यूज़र को शो करना है या दिखाना है या उसे प्रोवाइड करना है तो वी नीड सर्टेन डिवाइसेस. व्हाट आर दीज डिवाइसेस? लेट अस अंडरस्टैंड. अब हमने इनपुट जान लिया, देन वी अंडरस्टूड इनपुट डिवाइसेस ऑल्सो, आउटपुट ऑल्सो वी हैव अंडरस्टूड आउटपुट डिवाइसेस ऑल्सो. सो हियर दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव द रिजल्ट. दीज आर द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव द रिजल्ट. इन डिवाइसेस के थ्रू हम रिजल्ट देते हैं. तो वेयर वी गेट द रिजल्ट चिल्ड्रन? द रिजल्ट इज गिवन थ्रू द मॉनिटर. द रिजल्ट इज गिवन थ्रू द मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर. These are the different ways how we can get the output. So all these are called output devices. क्योंकि we are using these devices for getting the output, so we call it as output devices. Similarly, we use certain devices for giving input also. These input devices are KEY, KEYBOARD, board, keyboard. Then we have MOUSE, mouse. Then we have joystick. Then we have joystick. Then we have और क्या है हमारे पास? माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन है. So children, other than these we have webcam, वेब कैमरा है, टच स्क्रीन है. ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं. टच स्क्रीन से भी हम इनपुट करते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड input and input devices, and here we have output and output devices. So children, in this chapter mainly we are going to read about input devices, output and output devices. Why I am telling input and output again and again children? You get confused with input and output or output input device और output and output device. आप हमेशा confuse हो जाते हो. input है और input device अलग होता है. input गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर को बताना किसी काम को कैसे करना है, या फिर जो भी डेटा चाहिए उस काम को करने के लिए उसे प्रोवाइड करना हम इनपुट कहते हैं. अब इस डेटा को कंप्यूटर में प्रोवाइड करने के लिए वी नीड सर्टेन डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग इन अ कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी लिखना है, आप कंप्यूटर में कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप कंप्यूटर में कुछ लिखना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एक सोर्स चाहिए जिससे आप लिखोगे. तो व्हाट इज़ दैट सोर्स? दैट सोर्स इज कॉल्ड कीबोर्ड. ओके, अगर आपको लिखना है तो यू नीड अल्फ़ाबेट्स, and where do you find these alphabet children? These alphabets are found on the keyboard. So here input is given in the form of alphabet. Input is given in the form of alphabet and alphabet is present on the keyboard. So the device through which you are giving the input is called keyboard. तो यहाँ पे जिस डिवाइस को यूज़ करके आप इनपुट दे रहे हो इसको हम कीबोर्ड कहते हैं. सिमिलरली चिल्ड्रन, अब जब काम हुआ है तो यू विल गेट रिजल्ट ऑल्सो. किसी भी काम करने के बाद वी गेट अ रिजल्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट हमको मिलता है. दैट रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं. तो यहाँ पे दिस इज आउटपुट. नाउ इफ यू वांट टू गिव अ आउटपुट चिल्ड्रन, आउटपुट देने के लिए भी हमें एक
डिवाइस चाहिए, एंड दिस डिवाइस इज, आपने देखा होगा वॉट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर, हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं वो सब चीज़ें वो सारी चीज़ें हमें कंप्यूटर पे मॉनिटर पे दिखाई देता है. सो व्हाट इज दिस मॉनिटर चिल्ड्रन? इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट. मॉनिटर को यूज़ करके हम रिजल्ट, किसी भी चीज़ का रिजल्ट देख सकते हैं या कंप्यूटर हमें शो करता है. सो चिल्ड्रन, मॉनिटर इज फर्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस. Then we have printer, and if you want to get the same result printed on a paper, आपको अगर इसी सेम रिजल्ट को पेपर पे प्रिंट करना है तो here the printer will be output device. And if you want to get the result in the form of voice, आपको गाना सुनना है या कोई भी रिजल्ट आपके आवाज़ के फॉर्म में लेना है तो you can use the speaker. So children, these three are the output devices. So children, हमने यहाँ पे बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है. एक तो इनपुट है. The work starts with input. First of all, the computer needs some data or instructions, and these data or instructions are given in the form of set of instructions. इन data और instructions को हम set of instructions के फॉर्म में देते हैं to the computer to perform any task. अब इस पूरे instructions को हम input कहते हैं. जब हमने input करना है तो we need a device. अब input करने के लिए हमें device चाहिए. There we use any of these. कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, आपका वेबकैम हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकता है. तो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. डिवाइस का मतलब होता है मशीन, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन. तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे. इंस्ट्रक्शंस देने के लिए होता है, इसलिए हम उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं. सिमिलरली अब हमने दे दिया, इनपुट दे दिया. नाउ चिल्ड्रन, द कंप्यूटर विल प्रोसेस या CPU विल डू द प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद वी विल गेट द रिजल्ट. प्रोसेसिंग के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा एंड दिस रिजल्ट इज obtained ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. नाउ द प्रोसेस्ड रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. अब आपको जो आपका प्रोसेसिंग हुई है उसके बाद आपको रिजल्ट मिला है, दैट रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. सो दैट रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहेंगे, यानी फाइनल रिजल्ट को हम आउटपुट कहेंगे. किसी भी काम के होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट. एंड आउटपुट हैज़ टू बी शोन थ्रू सर्टेन डिवाइसेस. अब आउटपुट हमें दिखना चाहिए, वो शो होना चाहिए हमें, तभी हमें पता चलेगा व्हाट इज द रिजल्ट. तो हमने क्योंकि पूरा काम तो उसी के लिए किया है, तो यहाँ पे देयर ऑल्सो वी नीड सर्टेन डिवाइसेस. इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट, मतलब किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन यू वांट, in what form you information want. If you want to see the information soft copy में आपको चाहिए, monitor पे चाहिए आपको, तो आप monitor को यूज़ करते हो as a input output device. और अगर आपको printed form में paper पे चाहिए तो you can use printer here, or if you want in the form of voice you can use speaker. अब अगर आपको कहीं पे देना है तो there you can use CD, पेन ड्राइव ले करके देन यू कैन गिव इट टू समवन. तो यहाँ पे हमने सॉफ्ट कॉपी लिया है, वहाँ पे हमने प्रिंटर का यूज़ नहीं किया. तो यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इनपुट, आउटपुट, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 4040. अब हम पेज नंबर 40 पे आएंगे. हियर ऑन पेज नंबर 40 चिल्ड्रन we have certain examples. Now we are going to discuss these example to understand whatever I told you just now. अब मैंने ये चीज़ें आपको बताई तो आपको शायद समझ में न आई हो, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. सो चिल्ड्रन, हमारे घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या डिवाइसेस होता है या मशीन होती है. डिवाइस मीन्स अ मशीन. मशीन, एनी काइंड ऑफ मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजी और विच मेक्स आवर वर्क ईजियर, जो हमारे काम को आसान बनाता है और हमें हेल्प करता है, हम किसी काम को आसानी से कर लेते हैं. सो हियर चिल्ड्रन, फॉर दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स इन आवर हाउस विच वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल और द प्रोसेस ऑन विच द कंप्यूटर वर्क. सबसे पहले हम कोई भी सामान उसमें डालते हैं, उस सामान की प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है. तो यहाँ पर 3 प्रोसेस है. फर्स्ट इज गिविंग समथिंग टू द मशीन or providing something to the machine, and then that whatever we have provided to the machine is being processed. उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वही चीज़ हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है. द रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमें चाहिए, वी ऑलरेडी नो व्हाट विल बी द रिजल्ट. फॉर दैट रिजल्ट ओनली वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. तो हमें रिजल्ट पता होता है और उसी रिजल्ट के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे चिल्ड्रन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज सेम एज वी डू इन द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर में होता है वही पूरा प्रोसेस है. तो यहाँ पे हमारे घर में और कौन कौन सी चीज़ों को हम यूज़ करके ये सारे काम करते हैं, तो उनको यूज़
करके उन एग्जाम्पल्स को लेकर के वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल थिंग clearly and properly. Okay, now so here children, making orange juice using a juicer. So children, our first example is example number 1. Here our first example is the example of mixer or the juicer, you can say the juicer. सबके घर पे जूसर होता है. We all have juicer in our house. हम जूस पीते हैं, जूस से सर मिक्सर से निकालते हैं. So children, in this using this juicer for making a juice में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, let us understand and find out. So children, first of all, if you want juice, you have to get a particular fruit. आपको जिस भी फ्रूट का जूस चाहिए तो आपको वो फ्रूट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल है, वो डेटा है, और वो उस जूस को फिर हम जूसर में डालेंगे और उससे हमें जूस मिलेगा. तो हियर वी आर गोइंग टू हैव, वी वांट ऑरेंज जूस. अगर आपको ऑरेंज जूस चाहिए तो व्हाट डू यू नीड फॉर ऑरेंज जूस? द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ऑरेंज जूस इज ऑरेंजेस. तो सबसे पहले वी विल गेट द ऑरेंजेस. हम ऑरेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, हम लाएंगे. अब जूस चाहिए तो हमको ऑरेंजेस लाने पड़ेंगे. सो हियर इज़ अ बास्केट. दिस इज़ अ बास्केट. हमारे पास एक बास्केट है, इसमें हमने कुछ ऑरेंजेस रखे हैं. हियर वी हैव केप्ट सम ऑरेंजेस. ये ऑरेंजेस है, ठीक है. तो ये हमारा बास्केट में ऑरेंजेस है. दीज आर द ऑरेंजेस. द बास्केट इज फुल ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, जो हमारा बास्केट है ये ऑरेंज से भरा हुआ है. सो दीज आर ऑरेंजेस. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये है ऑरेंजेस. अब नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज ऑरेंजेस फॉर मेकिंग जूस. अब इसको यूज़ करके हम क्या बनाएंगे? जूस बनाएंगे. तो फर्स्ट इज दिस इज चिल्ड्रन इनपुट. ये इनपुट है, इसे हम इनपुट कहेंगे क्योंकि दिस इज द डेटा विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द मिक्सर और द जूसर. हम जूसर को ये डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज. सो सबसे पहले तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज. दिस इज ऑरेंज. नाउ यू आर गोइंग टू पुट दीज ऑरेंजेस इनटू द जूसर. आप इस ऑरेंजेस को जूसर में डालोगे. यहाँ पे आपका जूसर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जूसर है. इस जूसर में आप इस ऑरेंज को डालोगे, ठीक है. तो दिस इज जूसर. यहाँ पे ये जूसर है आपका. तो ये जूसर है, ठीक है. यहाँ पे ये जूस निकालेगा. अब यू आर गोइंग टू पुट दीज ऑरेंजेस इनटू द जूसर. आप जूसर में डालोगे. उसके बाद यू विल गेट द ग्लास ऑफ जूस. आपको यहाँ पे ग्लास ऑफ जूस मिलेगा. अब आपको यहाँ पे मिलेगा जूस, ठीक है. दिस इज जूस, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास है जूस. कौन सा जूस है? ऑरेंज जूस. तो वो भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं. यू विल गेट ऑरेंज जूस. यहाँ पे आपके पास है ऑरेंज जूस. और दिस इज, अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. सो चिल्ड्रन, एज यू नो, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है. ऑरेंज मीन्स इनपुट. ऑरेंज मीन्स इनपुट. व्हाट इज दिस इनपुट? दिस इनपुट इज कॉल्ड डेटा. डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस. जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को कह रहे हैं दीज आर ऑरेंजेस, मेक जूसेस आउट ऑफ दीज ऑरेंजेस, ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शंस हो गए. हमने बोला टेक ऑरेंजेस, मेक जूसेस ऑफ दीज ऑरेंज. ये सारे इंस्ट्रक्शंस हो गए. तो मैंने एक बात सिर्फ नहीं बोली, मैंने सिर्फ ये नहीं बोला दीज आर ऑरेंजेस, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने 2-3 बातें बोली. तो दीज आर कॉल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मीन्स है इनपुट. ये इनपुट हो गया. और हम कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब मैं यहाँ पे जो भी बोल रही हूँ, जो भी मैं इस यहाँ पे मैं जो भी बताऊंगी इस जूसर को, वो हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इनपुट. मैं इसको इसके अंदर डालूंगी. आई एम गोइंग टू पुट दीज ऑरेंजेस इनटू द जूसर. अब आफ्टर पुटिंग इट इनटू द जूसर चिल्ड्रन, व्हाट हैपन्स? देयर विल बी अ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होगा यानी काम का होना. दिस जूसर विल परफॉर्म सम वर्क. क्या वर्क है? वर्क है कन्वर्टिंग ऑरेंजेस इनटू जूसेस. काम क्या यहाँ हो रहा है? काम हो रहा है ऑरेंजेस को जूस में कन्वर्ट करने का. सो हियर ऑरेंजेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू जूसेस, मतलब हम ऑरेंज से जूस निकालने का काम कर रहे हैं. तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. PROCE, प्रोसेसिंग, SING.
प्रोसेसिंग, ये हो गया प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग की, एक बार मैं कायदे से लिख दे रही हूँ, PROCESSING, प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग इज द कन्वर्जन ऑफ ऑरेंजेस इनटू जूस। नाउ आफ्टर द प्रोसेसिंग चिल्ड्रन व्हाट वी गेट ऑरेंज जूस। What is this? This is a final result. इसे हम फाइनल रिजल्ट कहेंगे। फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है आउटपुट। तो पहले हम इसको आउटपुट लिखेंगे, आउट PUT पुट, आउटपुट, एंड देन वी विल राइट फाइनल FINAL, फाइनल रिजल्ट। फिर उसके बाद इसको हम फाइनल रिजल्ट कहेंगे। फाइनल रिजल्ट, द रिजल्ट विच वी वॉन्टेड, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमको पता था कि हम ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज ही मिलेगा, और इसीलिए हमने शायद ऑरेंजेस डाले, क्योंकि हमें ऑरेंज जूस चाहिए था। तो हमने टू गेट द ऑरेंज जूस वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। तो ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये हमें पता था कि यही निकलेगा। तो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे आउटपुट या फिर फाइनल रिजल्ट। सो चिल्ड्रन, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज द सेम एज वी डू इन द कंप्यूटर। यही पूरा प्रोसेस हम कंप्यूटर में भी करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। अब यहाँ पे इनपुट देने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे डिवाइस है बास्केट। हमने बास्केट में रखा ऑरेंजेस को, तो हम उसको इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। बास्केट को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये जो हमारा जूसर है, इट इज़ लाइक अ CPU, क्योंकि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU होता है। तो सारी प्रोसेसिंग, सारे काम CPU में ही होता है। ऑल द वर्क इज डन थ्रू द CPU, सारे काम CPU के थ्रू ही होता है। सो हियर दिस जूसर इज एक्टिंग एज अ CPU, एंड देन द फाइनल रिजल्ट वी गेट ऑन द प्रिंटर. So this glass of juice, yeah, this glass is containing the juice. So we can say it is a printer. Sorry, it is a monitor. या फिर हम यहाँ पे मतलब अब आउटपुट डिवाइस है, तो ये एक डिवाइस हो गया। जो ग्लास हम इसको प्रिंटर कहें या फिर हम इसको मॉनिटर कहें, उससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ग्लास हमें जूस देने के लिए हेल्प कर रहा है, तो हम इसे यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। इस ग्लास में ही हमको जूस मिला, तो हम इसे आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, तो यार दीज आर द 3 प्रोसेस और द साइकिल हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स और हाउ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। ये पूरा प्रोसेस है, एक साइकिल है जिस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। सो आई हैव given this example as it is given in your book, so that you all can understand the whole process of input, processing and output. तो ये सारी चीज़ें आप समझ लेंगे तो आगे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको आगे इनपुट और आउटपुट समझने में और भी आसानी होगी और easily you can understand. So children, this was the first example which we have discussed here. So here put oranges in the juices. First step में put oranges into the juicer. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ऑरेंजेस हमारे हैं इनपुट, तो ये इनपुट है। ऑरेंजेस को जूसर में डालना, ये इनपुट हो गया। अब जूसर क्या करेगा? जूसर मेक्स जूस आउट ऑफ ऑरेंजेस। ये जूसर जो है ये ऑरेंजेस से जूस बनाएगा। ये क्या करेगा? ये ऑरेंजेस को ले करके इसका जूस बनाएगा। ठीक है, ये ऑरेंजेस को ले करके इसका जूस बनाएगा। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द होल प्रोसेस ऑफ converting orange into juices are called processing. तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में the juicer will make juice out of the oranges. फिर थर्ड स्टेप में we get the juice. What juice? Orange juice, because we had given oranges, तो हमें orange juice मिला. So I hope children you all have understood. ये process है. This is a cycle how a computer works. So similarly there are many machines in our house which perform or which works on the same principle as a computer work. और यहाँ पे हमने ये principle बताने के लिए आपको नहीं किया, बस एक for information I have told all these things. ये हमने इसलिए किया कि you understand the different processes of computer, that is input, processing and output. अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई. Let us take one more example. चलो हम एक और example दे करके देखते हैं. So the second example is, now let us see what is second example. You can see in your book also. The second example is given here, children. The second example is, you can see here we have bread. Now here we are going to grill a bread into toaster using a toaster. We are going to grill the bread using a toaster. तो grilling a bread example में हमारे पास है grilling
a bread using toaster. Toaster, toaster. This is second example. Now children, this is second example. Here children, what are we going to do? यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ पे bread लेंगे, B-R-E-A-D, bread. ये हमारा bread है, ये हमारा slice of bread है, ठीक है? This is a slice of bread. ये हमारा slice of bread है. Here we have taken bread, ठीक है? ये हमारा bread, ठीक? ये bread है. अब ये जो bread है, ये slice में है. ये स्लाइस होता है ब्रेड का, ये स्लाइस में है ब्रेड. देन हम इसको ऐसे कर देते हैं. ये ब्रेड जो है ये स्लाइस में है. अब उसके बाद ये जो ब्रेड है, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ब्रेड फॉर मेकिंग टोस्ट. उसके लिए हमें टोस्टर को यूज़ करना है. टोस्टर इज़ अनदर टाइप ऑफ मशीन. टोस्टर भी एक तरह का मशीन है. जो टोस्टर है वो भी एक तरह का मशीन होता है जिसको यूज़ करके हम ब्रेड टोस्ट करते हैं. हम क्या करते हैं? हम ब्रेड टोस्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ टोस्टर. ये हमारा टोस्टर हो गया. इस टोस्टर को यूज़ करके यहाँ पे स्पेस में हम 2 ब्रेड डालेंगे. हियर वी आर गोइंग टू पुट ब्रेड. ये ब्रेड है. एक और ब्रेड हमने दूसरे वाले पे डाला है. यहाँ पे हमने दूसरा ब्रेड डाला है. अब ये दोनों ब्रेड यहाँ पे टोस्ट हो रहे हैं. दीज आर द 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. ये 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है विच विल बी टोस्टेड यूजिंग दिस टोस्टर. इस टोस्टर को यूज़ करके हम इनको टोस्ट करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसे यूज़ करके इन दोनों ब्रेड्स को टोस्ट करेंगे, ठीक है? ये हमारा टोस्टर है, ठीक है? यहाँ पे ये दोनों ब्रेड स्लाइस है, टोस्ट हो रहे हैं. नाउ चिल्ड्रन, सो हियर यू विल राइट टोस्टर, TOASTER, टोस्टर. दिस इज टोस्टर एंड दिस इज ब्रेड. मैंने ऊपर लिखा है ना, चलो हम टोस्टर भी ऊपर ही लिख देते हैं. TOASTER, टोस्टर. ब्रेड हो गया, टोस्टर हो गया. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? नाउ वी आर गोइंग टू गेट द टोस्ट. अब जो हमें ब्रेड मिलेगा वो टोस्ट होकर, मतलब वो टोस्ट बन गया है. नाउ इट हैज बिकम TOAST, सॉरी ऊपर हम लिखते हैं TOAST, टोस्ट. अब हमारा टोस्ट तैयार है. हियर वी हैव अ प्लेट. अब इसके ऊपर जो हमने ब्रेड रखा हुआ है, ये ब्रेड किस फॉर्म में है? टोस्ट के फॉर्म में. दिस इज अ टोस्ट. अब ये हमारा टोस्ट बन गया, ठीक है? थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया. इट हैज बिकम टोस्ट. सो नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज्ड डेटा और रॉ मटेरियल. ये आपका डेटा है, ये डेटा है, ब्रेड है. हमें टोस्ट बनाना है, तो टोस्ट बनाने के लिए हमें ब्रेड की ज़रूरत होती है. तो दिस इज डेटा. सो दिस ब्रेड इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर. दिस bread is provided to the computer by us. So here this bread is a data or information. अब it is known as input. इसलिए हम इसको input करेंगे. इसको हम input करेंगे. अब इस input को अगर आप इस bread वाले input को अगर आप टोस्टर में डालोगे तो यहाँ पे टोस्टर का होगा processing, PROCESSING, processing. After the processing we get the final result जिसको हम आउटपुट कहते हैं. OUT, PUT, पुट. ये हो गया आउटपुट. सो चिल्ड्रन, दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल वेयर वी हैव टेकन ब्रेड. ब्रेड इज बीइंग पुट इनटू द टोस्टर. टोस्टर में डाला गया है और पूरी प्रोसेसिंग होगी. प्रोसेसिंग का मतलब टोस्ट बनाने का पूरा प्रोसेस होगा. और जब टोस्ट बन जाएगा तो वी विल गेट द टोस्ट. हमें टोस्ट मिलेगा. सो चिल्ड्रन, ब्रेड इज द डेटा. ये डेटा है या इंस्ट्रक्शन है विच इज गिवन टू द this toaster, and toaster will do the processing. It is just like a CPU, and from here we get the final result, and this final result is called the output. So children, this is second example. I hope you all have understood. We will discuss some more examples which are given in your book, as well as we will be taking some more examples from the outside, and we will try to understand these 3 terms, that is input, processing and output properly. With this we have come to the end of this video. Watch the video, read the chapter, learn difficult terms which we have come across in the chapter. Try to understand the concept. Children, we will meet once again in our next video. We will do some more examples which are given here,
and then try to understand input, processing and output properly. So children, with this I am going to end the video. We will meet once again in our next video. Till then, thank you and have a nice day ahead.